Hey guys, good evening everyone. I hope all of you are doing good, doing amazing, and this had been an amazing day. Good evening, welcome to Unacademy. This is me, Sona Singh, your teacher for biology, and once again we are back with a quick revision of आपका प्लांटी. So welcome to the class everyone. If you all don't recognize me, अगर ऐसा है तो I'm Sona Singh, your teacher for biology, and where do I come from? I come from Amity University. Subscribers only mode. Okay, I have no idea what this is. Wow, ऐसा क्या है? Okay, is this something? Subscribers only mode? I have no idea. ऐसा भी कुछ होता है, मतलब होता है that I know, but I don't know what subscribers only. I'll speak to them after this. Acha. So I think perhaps only subscribers can participate in the chat. शायद ऐसा है. मैं participate कर सकता हूँ. मैंने subscribe कर लिया. Oh. Guys, just give me one moment. हाँ, एक second. हाँ. What? What is this? Okay, okay, कोई बात नहीं, अब जो भी है. Okay, guys, good evening, everyone. I hope all is well, all is good with each of you. So, guys, we were talking about Plantae. So, before I start to revise the entire plant kingdom, अगर आपके पास कोई भी doubt है, तो आप पूछ सकते हो. पहले अगर कुछ भी पूछना है बेटा, this is the final chance. Miss मत करो, पूछो. If there is something जो समझ में नहीं आया था, and I hope you have attended all the lectures, तो अभी आप पूछिए. अभी आपके पास समय है. Nobody is going to ask you क्यों भाई, क्यों, कैसे. अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए नहीं किए, अभी चांस है बेटा, पूछ लो. राइट. So even if you did not attend a few lectures and that is why you don't know something, this is the time for you to ask. ये आपके लिए पूछने का समय है. ठीक है. ओके, कैमरा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिकॉज कैमरा बंद हो जाएगा. Yes. Is jellyfish immortal? Beta, we can't say immortal. If you inject poison in it will die. It's immortal in a sense that it will not simply die by itself. वो बहुत अच्छे से reproduce कर सकता है. Right? So, but ऐसा नहीं होगा कि कोई एक इंडिविजुअल है कि वो मरेगा ही नहीं. Okay. Sir, मैं प्लस ले रहा हूँ. That's great. If you're taking plus, remember there is a code called Sona05 जिसको यूज करते आपका एडिशनल 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाता है. एंड ऑल्सो अभी 31 जुलाई तक देयर इज दैट ऑफर, उसका भी इस्तेमाल जरूर करना. जस्ट इन केस यू आर वॉन्डरिंग कौन सा ऑफर, आई विल शो यू राइट हियर फटाफट. सो गाइज यू नो दिस ऑफर. अगर आप 9th ग्रेड में हो सो यू गेट 50 + 25%. बोले तो 9th 10th में 50%, जेई नीट में 25%. अगर आप 10th में हो तो 10th ग्रेड में 33% और 11th 12th यानी जेई नीट में 20%. तो ये बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं जो 31 जुलाई तक है, तो इनको मिस मत करना. गाइज, एनीवन विथ अ डाउट, अगर कोई भी डाउट है बेटा, दिस इज द टाइम टू आस्क. दिस इज द टाइम टू आस्क. ओके. सो गाइज, व्हाट इज अनअकैडमी प्लस? आपको फटाक से मैं बता दूं, इट इज वेयर यू गेट एन एक्सेस टू ऑल ऑफ आवर कोर्सेज and that gets you a very robust preparation. Right? Live classes, everything is recorded. You have PDF materials. You can learn anywhere from everywhere. कोई खास ज़्यादा, all you need is just a mobile phone and an internet connection. कैसे लेना है? You have to choose your category. आपकी category होगी ITG NEET Foundation. So what is NAM and NAG? They are sort of constituents of your peptidoglycan का cell wall. पेप्टाइडोग्लाइकान का सेल वॉल का नैम और नैग और फिर 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके क्रॉस लिंक्स बनते हैं. तो ये रहा नैम नैग, इसके बीच में यू हैव क्रॉस लिंक्स. एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. सो हाउ डू यू गेट द सब्सक्रिप्शन? चूज योर कैटेगरी. कैटेगरी चूज करते ही सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. क्यों मैं बोल रहा हूं लॉन्गेस्ट? आपका पर मंथ प्राइस बहुत घट जाता है, 800 रुपए पर महीने. और इसके ऊपर भी अगर यू टेक Sona 05 यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. ठीक है.
800 से 722 रुपए ओनली। अब इसका एक बड़ा भाई है आइकॉनिक। आइकॉनिक के बारे में आई विल जस्ट क्विकली टेल यू। आइकॉनिक बेटा is a subscription जहां you get a personalized mentor. You get a mentor who is in touch with you. He can tackle your problems. He will be able to analyze your reports and connect with you on a one-to-one basis. Iconic के pricings आपकी स्क्रीन पे हैं और यहाँ भी आपका Sona 05 एप्लीकेबल, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई कैनॉट कॉमेंट अबाउट एनी कॉम्पिटिटर, है ना, दैट वुड बी अनएथिकल ऑफ मी एज अ टीचर। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट अ कॉम्पिटिटर, आई कैन जस्ट टेल दैट व्हाट वी आर डूइंग इज रियली गुड, राइट। आई कैनॉट कॉमेंट अबाउट दूसरा हमारे से कैसा है ना, वो अनएथिकल होगा बेटा, ठीक है। ओके चलो सर, in my book it is written that the liverworts and hindworts they have thalloid structure with rhizoids and mainly mosses have stem, leaves and rhizoids. सम्यक देखो, we can't call them true stem, true roots or true leaves, right? हम उनको true stem, root और leaves नहीं कह सकते because in most of the liverworts or hornworts, mainly most of bryophytes, gametophyte आपका डोमिनेंट स्ट्रक्चर है। यही बात लोग समझते नहीं कभी काल। और आप अगर मॉडर्न रूट स्टेम और लीव्स की बात करो, वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स हैं। सो इसीलिए उसको ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं कह सकते, हम कहते हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। अब आते हैं राइजोइड्स क्या है बेटा। राइजोइड्स अगेन they are branches coming out for stem which just help them to anchor. Once again they are not roots but they sort of do the purpose of anchoring. So rhizoids के बारे में फंडा बिल्कुल सही है। Thalloid structure just means that there is no very much specialization. Specialization है, ज्यादा नहीं है, but still thalloid characteristic हम ज्यादा से ज्यादा थैलोफाइटा के लिए यूज करते हैं, not ब्रायोफाइट। हाँ, हम मानते हैं कि आपके ब्रायोफाइट में बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन नहीं है, वी अग्री विद दैट बेटा, बट स्टिल देयर इज स्पेशलाइजेशन, राइट। देयर इज एन एपिकल मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम विल डिफरेंशिएट। ओके तृप्ति सर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस इन प्लांट्स? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सर क्विज स्टार्ट करिए बेटा, वो मुझ पे छोड़ दो, क्या स्टार्ट नहीं कराना है या कराना है वो मुझ पे छोड़ दो, आप क्वेश्चन पूछो। सर विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस? ठीक है, ये बता दिया। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स जो समझ में नहीं आया था और अब आप पूछना चाहते हो, दिस इज द टाइम। अदरवाइज आई विल स्टार्ट विथ माय ओन स्टोरी। मैं अपनी कहानी के साथ शुरू करता हूं और फिर देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ माय ओन स्टोरी। वंस अगेन आई विल टेक 10 से 15 मिनट टू गिव यू अ ब्रीफ रीकैप ऑफ what have we studied in past 3 lectures. पिछले 3 लेक्चर्स में मिला के what is मेगास्पोरोफिल। ठीक है, हमने बोला 2 तरह की जनरेशंस होंगे, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है उसको हम मेगा और माइक्रो तब बोलेंगे जब वी हैव हेटेरोस्पोरी, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर ऐसे टिश्यूज जनरेट होंगे, ऑर्गेन्स जनरेट होंगे जो आपका स्पोर्स बनाएगा। When you have heterospory, यानी आप 2 तरह के स्पोर्स बनाओगे, तब you can refer to them as microsporangium और microsporophil और megasporophil. Okay? And these megasporophil, जब आप जोड़ देते हो, these are not actually sporangium, these are micro leaves present in pteridophytes जो आपके sporangium को भी कवर कर रहा है। मैं इसको ड्रॉ करके बनाता हूं। Let me just try to draw these. So pteridophytes में 2 तरह के leaves थे, microphylls and megaphylls. So microphylls or microsporophylls they sort of are protective structures over आपका सोराई। सोराई के अंदर spores होते थे। Sir, how does intercalary meristem come into the picture? बेटा, it is just a meristem जो आपके nodes पे, branches में छिपा हुआ है और branches को help करेगा। अगर आप इसका ओरिजिन पूछ रहे हो तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि कब ये फर्स्ट बार ओरिजिनेट हुआ होगा। ठीक है सर, आपके इस वीक का प्लान क्या है यूट्यूब का? अभी मैं वो दिखाऊंगा, डोंट वरी। रजक हाय गाइस, इफ यू अंडरस्टूड द प्लांट डाइवर्सिटी, जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दो। अगर आप प्लांट डाइवर्सिटी समझ चुके हैं देन हिट द लाइक बटन। वंस अगेन
लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी अफ्रेश। एक बार क्विकली 10 मिनट में रिवीजन करते हैं, राइट? सो कहानी कहां से शुरू हुई थी बेटा? लॉजिस्टिकल क्वेश्चन थोड़ा बाद में, ठीक है? कहानी कहां से शुरू हुई थी? टैलोफाइटा से। सम ग्रीन एल्गी जो कोस्टल एरियाज में रहते थे, नदियों के पास या सीज के पास, वो हाई टाइड्स लो टाइड्स पे बाहर चिपकने लगे, कोस्ट में, बैंक्स के पास। इसका कंसीक्वेंस ये रहा, some of them started to have characteristics to adapt to the dry land. Let me use my whiteboard for this, शायद वहां पे ये एक्सप्रेशन ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो अगर हम शुरुआत करें, सो वी विल स्टार्ट विथ सम ग्रीन एल्गी, है ना? हम कुछ ग्रीन एल्गी को बोलेंगे विच बिकेम डेसिकेशन रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट बोले तो अब वो उसको रेजिस्ट कर सकता था बिकॉज ऑफ सम मॉडिफिकेशन, राइट? व्हाई? बिकॉज नाउ इट वाज मल्टी सेल्यूलर। बाहर मल्टी सेल्यूलर हो गया वो। मल्टी सेल्यूलर होने का मतलब है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अब घट चुका है। दैट मीन्स ज्यादा वाटर लॉस नहीं होगा। ये उसका एडेप्टेशन था। बाहर आने के एडवांटेजेस क्या थे? CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, प्रीडेशन काफी ज्यादा लेस। प्रीडेशन काफी ज्यादा लेस और CO2 ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगा। तो ग्रीन एल्गा गेव राइज टू दीज प्लांट्स। अब इनका लिमिटेशन क्या था? इनके पास कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। दे हेविली रिलाइड ऑन सिंपल अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स, so their reproduction was prone to dryness. उनका रिप्रोडक्शन अभी भी ड्राइनेस के कारण खतरे में आ जाता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उनमें कोई कंडक्टिव टिश्यू नहीं था। और अगर उन्हें CO2 ऑक्सीजन और ज्यादा सक्सेसफुल चाहिए था, तो दैट मीन्स दे नीडेड मोर स्पेशलाइजेशन। ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड भी नहीं थे। That gave rise to the next generation of plant, or we can say next type of plants called the bryophytes. Next type कौन सा आया बेटा? Bryophyta. Bryophyte के पास की evolution features क्या आए? It had structures to improve its survival. कैसे structures? कवर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अब थोड़े से कवर्ड होते थे, भले ही बहुत पतली सी लेयर, बट दे हैड कवर्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रायोफाइट्स के पास क्या आया? दे हैड रूट लाइक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्टफ। दे वर नॉट ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, बिकॉज आज का ट्रू रूट स्टेम और लीव्स स्पोरोफिटिक है, और ब्रायोफाइट में गैमीटोफिट जो है वो डोमिनेंट होता था। वैस्कुलर मतलब समथिंग जो ट्रांसपोर्ट करे, और ट्रांसपोर्ट का काम आपका करता था जाइलम और फ्लोएम, जो ब्रायोफाइट तक नहीं आया। सो दैट वाज द नेक्स्ट एडवांसमेंट। नेक्स्ट एडवांसमेंट आपका था टेराइडोफाइट। नेक्स्ट एडवांसमेंट आपके लिए बनकर आया टेराइडोफाइटा। टेराइडोफाइटा क्या लेकर आया? वैस्कुलर टिश्यूज। और क्योंकि यहां स्पोरोफाइट, आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज था, सो ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, बेटर एनकरेज, बेटर फोटोसिंथेसिस एंड बेटर कंडक्शन, यानी ये पेड़ बड़े हो सकते थे। दे कुड ग्रो टॉल। टॉल का मतलब है इनका रिप्रोडक्शन भी इंप्रूव हो गया। दे हैड बेटर प्रोटेक्शन फॉर स्पोर्स। उनके स्पोर्स के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन मिला, राइट? अब क्या है? अब क्या है? हमें अगला स्टेप पे आना है। वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जिम्नोस्पर्म। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या की रिप्रोडक्टिव फीचर्स आया? सीड। आपका गेमिटोफिट, आपका गेमिटोफाइट रिड्यूस होता गया। क्यों रिड्यूस होता गया? क्योंकि रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट को हम ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका स्पोरोफाइट एक इंडिविजुअल था, गेमिटोफाइट एक इंडिविजुअल था, तो दोनों का
दोनों अगर बाहर जाएंगे तो चांसेस ऑफ डेंजर आर मोर, राइट? व्हाई वी हैव अल्वा इन आवर माउथ? बेटा दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स यू टू क्लोज द ओपनिंग। वो आपके ओपनिंग को क्लोज करने के लिए हेल्प करता है कि आपका खाना ऊपर और नीचे ना चला जाए। सॉलोइंग में वो आपकी हेल्प करता है। व्हेन यू डू इट सॉर्ट ऑफ क्लोजेस द स्टफ सो दैट वो डायरेक्टली फूड पाइप में जाए, ठीक है? सीड एंड देन यू हैव गैमेटोफाइट, जो कि रिड्यूस होता गया। सीड से हमें क्या मिला? प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक स्ट्रेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एबायोटिक स्ट्रेस, राइट? आपका इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटेक्शन, आपका बायोटिक यानी कि लेस प्रिडेशन होने लगा, ठीक है? फाइनली एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का की एडवांटेज क्या रहा? व्हाट वाज द की एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म? दे हैड फ्लावर्स एंड दे हैव फ्रूट्स। फ्लावर और फ्रूट्स से क्या हुआ? रिप्रोडक्शन काफी एफिशिएंट, काफी स्पेसिफिक बन गया, राइट? काफी स्पेसिफिक बन गया। और तो और इसके साथ हमारे फ्रूट्स के कारण सीड्स का डिस्पर्सल अच्छे से होने लगा, एंड नाउ एवरीथिंग इज गुड, ठीक है? एवरीथिंग इज गुड। ओके सर, व्हाट इज स्ट्रोबिलाई? बेटा कोन एंड स्ट्रोबिलाई आर रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जो आपका स्पोर्स होते हैं वो कोन और स्ट्रोबिलाई के अंदर छिपे होते हैं, ओके? कोन और स्ट्रोबिलाई के अंदर छिपे होते हैं। लॉजिस्टिकल क्वेश्चंस, उमार सर प्लस में चैट होता है स्टूडेंट्स बोलने वाला? प्लीज टेल। हाँ बेटा होता है, बट उसका मिसयूज नहीं करते हैं। वैष्णवी सर कोर्स कब आएगा एनटीएससी वाला बायो मैम के साथ? बेटा स्टार्टिंग August 1, स्टार्टिंग August 1। ओके एक सेकेंड गाइज, प्लांट की कहानी ये थी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है पूछो। ये ब्रीफ कहानी है प्लांट्स की, जो हमने पिछले 3 क्लासेस में ज्यादा डिटेल में पढ़ी। ये तो मैंने बस शॉर्टकट में निकाल लिया, राइट? बट दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 3 क्लासेस। सर आर फाउंड इन होमोस्पोरस हीटर। सर आर कॉन्सेंट। बेटा जब भी कोन्स और देखो, कोन्स और स्ट्रोबलाई जब अलग अलग हैं यानी दैट्स अ हेटेरोस्पोरस गाय। होमोस्पोरस में या तो नहीं हेटेरोस्पोरस है ना। आई थिंक स्ट्रोबिलाई और कोन्स अगर अलग अलग है तो बेटा इट इज हेटेरोस्पोरस, अगर सेम है तो होमोस्पोरस में दोनों होगा। कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई कैन बी फाउंड ऑन द सेम स्पीशीज, सेम प्लांट इंडिविजुअल, सो दैट्स अ होमोस्पोरी। बट लार्जली आपके जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरी होते हैं, होमोस्पोरी होता है। होमोस्पोरी में एक ही इंडिविजुअल में दोनों मिलेगा, हेटेरोस्पोरी में अलग अलग इंडिविजुअल में दोनों मिलेगा। फर्क वो है, ठीक है? ओके यस, एनी अदर डाउट्स गाइज? गाइज अगर हमें ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने की आदत लग गई तो एनिमेलिया वुड बी अ लॉट मोर इजियर। एनिमेलिया हमारे लिए आसान होगा, बिकॉज एनिमेलिया इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 5 times दिस। एनिमेलिया में कॉम्प्लेक्सिटी इसका कम से कम 5 गुना होगा। कम से कम 7-8 सेशंस एनिमेलिया लगाने वाला है। 7-8 नहीं तो 5-6 तो पक्का लगाएगा, ठीक है? तो एक बार हमें ये आदत लग गई ना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने का, तो मजा आएगा। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि प्लांट का ओरिजिन लगभग 470 मिलियन ईयर्स लग गए, राइट? एंड ऑलमोस्ट सीड प्लांट्स को आने तक 360 मिलियन। सो जब आप ये सोचो कि सीड का इवोल्यूशन में 100 मिलियन ईयर्स लगे थे, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट इट कुड बी, राइट? सो गाइज जब हम कहते हैं ना कि ये आ गया, वैस्कुलर एलिमेंट्स आ गए, तो बेटा इस बात को समझना जरूरी है कि वो अचानक से 100-200 सालों में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन ऑफ प्लांट से लेकर वैस्कुलर प्लांट्स यानी जाइलम और फ्लोएम का देखो तो 470 से 425, आई थिंक दैट इज व्हाट 45 मिलियन ईयर्स लग गए सिर्फ वैस्कुलर टिश्यूज आने के लिए। सर सेंड यू एन इमेज प्लीज टेल द रोज ऑफ। एक सेकेंड, किस पे? टेलीग्राम पे भेजा बेटा? यार टेलीग्राम ना मुझे खोलना तो नहीं चाहिए, बट लेट मी सी।
Okay, equisetum are some pteridophytes, ठीक है, these are cones, okay, rhizome, root, strobilus, root, selaginella. Okay, looks like that is a heterosporous guy. They are producing two different spores on two different individuals. ठीक है. Both equisetum and selaginella दोनों के दोनों heterosporous लग रहे हैं देखने में. Right? Assuming that all of this is correct, जो कि शायद होगा, ये बुक की इमेज लग रही है तो obviously correct ही होगा. Looks like they are heterosporous. Looks like that. Right? एक बार confirm कर लूं तो ज्यादा better होगा. Right? I am very bad with examples, तो मुझे याद नहीं है कौन equisetum और selaginella homosporous है या नहीं, sorry heterosporous है या नहीं. Again, it's better that I confirm and then say, but looks like it's heterosporous. ठीक है? Okay. Okay. So guys, कहाँ गए हम? Yes. So why is phycoerythrin present? Better you have to think about where these things originated. They originated in the water. पानी में you have very less light. पानी में आपके पास लाइट काफी है. आप जितना ज्यादा पिगमेंट्स रखोगे उतना ज्यादा ऑब्जॉर्व कर पाओगे. राइट? एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेप्थ. कौन सा लाइट कहाँ ज्यादा आपका what do you say scatter हो रहा है. रेड scatters the least, right? रेड आपका लीस्ट स्कैटर होता है. सो उसी हिसाब से आप सोचो आपके किस टाइप के एल्गी ऊपर पाए जाएंगे, किस टाइप के एल्गी नीचे पाए जाएंगे. इवन दैट चेंजेस. ठीक है. सर, डू लीव्स ऑलवेज कंटेन स्पोर्स इन टेराइडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स? Not in case of bryophytes. In pteridophytes, there are these specialized leaves called microphylls which protect the spores. Leaves kind of hold the spores in place, beta. Not all leaves will have spores. जैसे मैंने बोला था, दो तरह के leaves आए थे, micro and mega. Mega formed the leaves, you know, the leaves, photosynthesis करने वाला. Micro वाला का main purpose रह गया आपका सोराई को hold करना. Rayleigh law of scattering, yes. ठीक है. Okay, so guys, all of these जो चीजें हम कह रहे हैं ना कि आ गई, these took millions and millions of years to happen. And eventually हमारा गैमीटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर छोटा छोटा होते होते लास्ट में माइक्रोस्कोपिक रह गया. Gymnosperms and angiosperm both have microscopic gametophytes. Best book for bio for NTSE, NCERT, आपका स्टेट बुक, ICSE की कोई भी बुक उठा लो, तेलंगाना का बुक उठा लो, आंध्र प्रदेश का उठा लो, दैट्स फाइन. आपको कोई सुपरफ्लुअस बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा. ठीक है. चलो, यही कहानी थी हमारी. हमने ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल देखा. राइट? वी सॉ दैट देयर वाज अ गैमीटोफीट जिसके ऊपर होता था स्पोरोफीट. स्पोरोफीट मियोसिस करके स्पोर्स देता. स्पोर्स अलग अलग गैमीटोफीट बना सकते थे या सेम बना सकते थे. उनके अंदर गैमेटेंजिया एंड 3D आर्किगोनिया आया. स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करके जाइगोट बनाया. जाइगोट से स्पोरोफाइट जनरेट होना चालू हो गया. एंड द स्पोरोफाइट वाज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. यानी यहां गैमेटोफाइट इज द बिग गाय. ब्रायोफाइट के बाद हमारा टेराइडोफाइट्स आए जहां पे the sporophytes became the big guy. Right? Sporophytes became the big person. Gametophytes became the small person. अब बेटा ये generalizations हैं. याद रखना बेटा, ये generalizations हैं. हर एक division में you'll get exceptions. Okay. Sir, are bisexual plants homosporous? Okay. Now understand one thing. When I say monoecious, dioecious, unisexual, bisexual, थोड़ा इनमें फर्क हो जाता है. When I say a species is monoecious, it has just one body. उसमें उसके पास सिर्फ एक बॉडी होगा. राइट? और वही एक बॉडी में दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स आपको मिल जाएंगे. When I say dioecious, that means उसके पास दो बॉडीज हैं. There will be a male body and there would be a female body. Right? Now, sometimes you find a mix of these things. Sometimes you find a mix of these things.
बेहतर होगा आप रिप्रोडक्शन चैप्टर तक रुको, बट मैंगो इज अ गुड एग्जाम्पल। मैंगो आपका गुड एग्जाम्पल है। मैंगो में जैसा मुझे याद है, आई माइट नॉट रिमेंबर इट एक्यूरेटली, 75% ऑफ फ्लावर्स शायद बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट दोनों होगा। 25% ऑफ फ्लावर्स आर नॉट बाइसेक्सुअल। सो बेटा जो भी हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं उसके वियर्ड एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं, राइट? अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने परसेंट फ्लावर्स कौन से टाइप के होते हैं, बट यू विल गेट वियर्ड एक्सेप्शंस। मतलब एक ही पौधे में इट्स अ मोनोशियस गाय, मोनोशियस गाय मतलब उसका एक ही प्लांट बॉडी है। मैंगो देयर इज नो टू मैंगोज, मैंगो इज मैंगो, बट एक ही मैंगो में 75% ऑफ फ्लावर्स शायद बाइसेक्सुअल होते हैं और 25% शायद स्टैमिनेट होते हैं। When I got to know this, it was very weird to understand, but this is the harsh truth, क्या करें, right? So वो all वाला जो statement है ना, वो I don't think is applicable anywhere in biology. अब अभी मुझे exactly याद नहीं कि 75 क्या था 25 क्या था, but ऐसा था, right? So all वाला statement बेटा कहीं काम नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ exceptions तो हो ही जाते हैं। but अगर एनसीईआरटी का कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑल बोल रहा है, आपको उसको ऑल मान के चलना है, डिस्पाइट व्हाट द वर्ल्ड सेज, राइट? इफ देयर इज एन स्टेटमेंट इन एनसीईआरटी दैट सेज ऑल डैश आर डैश, यू हैव टू फॉलो इट वर्ड टू वर्ड, सिलेबल टू सिलेबल। आप उसको डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट नीट और एनटीएससी आर गोइंग टू फॉलो दैट। ठीक है, क्लियर है? सम्यक सम्यक। मैं चश्मा लगाना फिर से भूल गया। ओके, सो द नेक्स्ट thing we had was a gymnosperm. So gymnosperms had cones or strobiles, whatever you want to call them. कभी काल मेल कोन फीमेल कोन कह लेते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी कोन और स्ट्रोबिलाई कहना चाहती है। दैट्स ओके, वी डोंट माइंड, राइट? अब इन कोन्स के अंदर आपका माइक्रो या मेगा स्पोरेंजियम है, राइट? माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम बोले तो दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, मेल स्पोर्स, मेगास्पोर्स, फीमेल स्पोर्स वाया मियोसिस। मियोसिस करके ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाएंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक है। अब यहां पे मुझे पानी की जरूरत नहीं है। अगर ब्रायोफाइट की बात करें या टेराइडोफाइट की बात करें, मुझे फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इवन दो एक समय टेराइडोफाइट्स बड़े बड़े जंगल बना देते थे, आज हमें वैसे जंगल नहीं मिलते, क्योंकि द इन्वायरमेंट बिकेम अ लॉट मोर ड्राई उस समय, क्योंकि उस समय एक आइस एज भी आ रहा था, राइट? इट वाज अंडर वे एंड एक्चुअली वी से दैट प्लांट्स क्रिएटेड एन आइस एज, राइट? सो ब्रायोफाइट्स वर गुड as long as the environment is very moist. आज भी if you go to the hilly areas, I don't know how many of you live in the north eastern India. अगर आप नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाएंगे जहां पे चीरापूंजी या फिर दार्जिलिंग और उन जगहों पे जाएंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आपका टेराइडोफाइट्स। आपको कई सारे टेराइडोफाइट्स मिल जाएंगे, बिकॉज आपको समझना है द लॉजिक इज दे नीड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। वेयर एज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये बिना उसके भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे डोंट हैव एनी सच प्रेशर। व्हाई? उनके ट्रांसफर के लिए भले विंड की जरूरत पड़े, फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब आ जाएगा। सो दिस पॉलन ट्यूब वाज अ बिग गाय। हाउ डिड प्लांट्स क्रिएट आइस एज? बेटा दे अब्सॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ कार्बन। अभी ब्रायोफाइट भले ही जितना हो, अकॉर्डिंग टू वन डेटा जो अगर आई होप मुझे सही से याद हो, स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट था जो आज वो जो पीट कोल होता है ना, कोल अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमेन वगैरह वगैरह। तो आई थिंक इफ आई एम रिमेंबर करेक्टली, वर्ल्ड का 30% कार्बन डाइऑक्साइड वाज अब्सॉर्ब्ड बाय दिस स्फैग्नम गाय, पीट। और यही पीट को अब हम जला रहे हैं, कोल को। सो अभी भले ही आपके सामने टेराइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स ना दिखें, उस समय these people were absorbing a lot amount of carbon dioxide to such an extent कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन 35 to 38% चला गया था। अभी कंसेंट्रेशन क्या है? What is the concentration of oxygen right now?
What is the concentration of oxygen right now? 78 is nitrogen, 21 is oxygen. उस समय जब प्लांट्स आ रहे थे 35 38 ऑक्सीजन शूट कर चुका था, इतना ज्यादा प्लांट्स हो चुका था, बिकॉज दे वर अब्सॉर्बिंग अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट? एंड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब घट रहा है, व्हाट विल हैपन इज लेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट? लेस ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो वी बिलीव कि प्लांट इवोल्यूशन कंट्रीब्यूट किया होगा. मे बी दिस इज नॉट द सोल कल्प्रिट, बट कंट्रीब्यूट किया होगा. इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रीअब्सॉर्ब होने के कारण अब वो गर्म नहीं हो पा रहा था, एंड धीरे धीरे दिस बिकेम वर्स्ट, बट दे बिकेम देयर ओन सॉल्यूशन. इन्होंने ऑक्सीजन इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया एनवायरनमेंट में कि धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, दिस ऑक्सीजन क्रिएटेड समवेयर एक्सट्रीम्स क्रिएट करने लगे, और एक्सट्रीम्स क्रिएट करने के चक्कर, और बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इज वेरी इजी, राइट? सो देयर वर ह्यूज फॉरेस्ट फायर्स, and these forest fires sort of cleared the ice age. But in cycles, the megasporophyll are not organized in the definite cone. Beta, that is totally possible. Again, Anurag, beta, आप exceptions की बात कर रहे हो. We don't have to deal with exceptions unless you right now you are going to sit for NEET, right, beta? Guys, let me be very clear. मैं एक बात आपको बताता हूँ. We don't have to sit for, or we don't have to vouch for exceptions unless हमें नीट के लिए बैठना है. नीट छोड़ के कहीं आपको ये नहीं पूछेगा कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज में ऐसा था, बताओ. कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि सिलेजिनेला होमोस्पोरस था या हेट्रोस्पोरस था. हाँ, वो सिलेजिनेला के लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बोलकर, सिलेजिनेला वाज अ डैश स्पीशीज टेराइडोफाइट. अब उसके हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे, जहां पे आपको उनका वैस्कुलर एलिमेंट्स होना, उनका रिप्रोडक्शन एफिशिएंट होना के ऊपर क्वेश्चन बना देंगे. दे विल नेवर आस्क यू अबाउट अ फैक्चुअल क्वेश्चन कि ये बताओ कि ऐसा क्या था, या इसका इसका ये कौन था, होमोस्पोरस था, हेटेरोस्पोरस था, या राइजोइड्स था या नहीं. मतलब देखो, आप बात समझो बेटा, दो तरह के एग्जाम्स है इंडिया में. एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम्स, एनटीएससी इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम है. एनटीएससी कभी उस लेवल का नहीं पूछने वाला. नीट अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम, एंड वी आर नॉट डीलिंग विथ नीट राइट नाउ. वी आर डीलिंग विथ नीट फाउंडेशन, यानी लॉजिक, ताकि जब आप जाओ तो आपको कम रटना पड़े. दूसरा टाइप ऑफ एग्जाम्स इन इंडिया क्या है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम, CSIR, गेट, IIT, IJSOs, IBOs, वहां पे आपको दिमाग लगाना है. दे विल नेवर आस्क यू सच क्वेश्चंस. ठीक है? ऑक्सीजन कॉज रुबिस्को टू बीट्रे, पॉसिबली दैट मस्ट हैव हैड हैपेंड. ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, राइट? ओके, ऐसा बिल्कुल हुआ होगा. ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के कारण यू अगेन हैव द स्पोरोफाइट बिकॉज ऑफ सीड. सीड से आपका नया स्पोरोफाइट बन गया. काफी सिमिलर एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल था, विथ माइन्यूट डिफरेंसेस. यू हैव अ फ्लावर नाउ. फ्लावर के होने के वजह से क्या हुआ? यू हैव मोर अट्रैक्शन. You have more attraction to the pollinators. Your transfer of pollen grains became specific. अब आपके pollen grains ऐसे हवा में नहीं उड़ रहे, उनको लाने ले जाने के लिए insects धीरे धीरे आ रहे थे. First important point. Second, remember कि ये सारा is the modification of leaf. आपका flower कुछ स्पेन से आया कुछ मजेदार चीज नहीं है. It is just a leaf. आपका flower part, sepals, petals, carpels, or even anthers, they are all modified leaf structures बेटा. सारे के सारे modified leaf structures हैं जिनके अंदर आपका स्पोरोफीट, स्पोरेंजिया बढ़ रहा है. That's it. ठीक है? यहां पे भी you have microspores, meiosis करके, and you have megaspores. Microspores and megaspores are going to fertilize after pollination using the pollen tube. वो seed बनाएंगे, fruit बनाएंगे, fruit से advanced dispersal होगा, and your guy is there. Is it why petals look so venous? Beta, petals look such venous because most of the time petals are fragrant. Petals are sugary. हम बोलते हैं ना नेक्टर खाने आ रहे. नेक्टर क्या है?
पेटल्स के वेन्स में छिपा शुगरी सब्सटेंसेस, वो शुगरी सब्सटेंसेस उसको कौन लाके देगा? द वैस्कुलर टिश्यू. Sir, I'm in ICSE. I fill form of NTSE as my school is not hosting NTSE. बेटा आई डोंट, NTSE के लिए आप स्कूल के बाहर से फॉर्म शायद भर सकते हो, एक बार चेक कर लेना बस उनकी वेबसाइट पे. आई थिंक यू कैन फिल इट, यू जस्ट नीड अ परमिशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल. स्कूल प्रिंसिपल से परमिशन बस लेना होता है, आप भर सकते हो. आई थिंक आई रिमेंबर अ केस, ऐसा पहले हुआ था कि किसी स्कूल प्रिंसिपल वाज लाइक नॉट वेरी मच bent on signing that application. So I remember this कि there is a procedure, you just need to get an authorization form जो आपको NCERT की वेबसाइट से ही शायद मिल जाता है, और वो साइन करवा के आप कर सकते हो. नॉट अ बिग डील. ठीक है, चलो. दिस इज अ वेग कंपैरिजन बिटवीन आपका चारों मेजर प्लांट किंगडम्स. सो you had swimming sperms till pteridophytes. Swimming sperms went off after gymnosperms and angiosperm. क्यों? क्योंकि swimming sperms were no longer needed, क्योंकि आपके पास pollen tube था. Once again, बेटा remember there are exceptions. Most ancient gymnosperms के पास flagellated sperms हैं, बिल्कुल हैं, right? But we will not talk about that. We'll talk about generalizations, trends. वैस्कुलर टिश्यूज आपका ब्रायोफाइट्स में नहीं था, टेराइडोफाइट्स में आने लगे. अगेन विल टॉक अबाउट ट्रेंड्स. कुछ ब्रायोफाइट्स में यू टॉक अबाउट सेल्स कॉल्ड हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स. ऐसा कुछ सेल्स आपको मिलेगा एडवांस बॉटनी में. नहीं पढ़ना, ये मत सोचना कि वो आपका वैस्कुलर टिश्यू बन गया, नहीं. बट यस, somehow they were like the precursors of vascular elements, we can say कि हाइड्रॉइड सेल्स वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी के सेल्स हैं, जाइलम सेल्स हैं, तो हाइड्रॉइड सेल्स दे वर लाइक मोस्टली सेल वॉल, मोस्टली नॉट इंटायरली डेड, मोस्टली सेल वॉल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते थे. ऐसा कुछ पाया जरूर जाता था, बट हम अभी ये डेप्थ में नहीं जा रहे, हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो हाइड्रॉइड्स लेप्टॉइड्स जैसी चीजें थी. पॉलन ग्रेन्स, वंस अगेन पॉलन ग्रेन स्टार्ट हुआ आपका जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, और इससे क्या फायदा हुआ? पानी का नीड हट चुका था. सीड्स, वंस अगेन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, एंड इससे क्या फायदा हुआ? योर एम्ब्रियो हैड प्रोटेक्शन, फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स. फ्लावर्स आपका सबसे लास्ट एंजियोस्पर्म्स में आए, उससे क्या फायदा हुआ? आपका रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया. फ्रूट्स सबसे लास्ट एंजियोस्पर्म्स में आए, इससे क्या फायदा हुआ? आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स स्पेसिफिक बन गया. सो व्हाई डू एंजियोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिन सेल्स इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स? एल्ब्यूमिन सेल्स? आर यू श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स हैव टू हैव कंपेनियन सेल्स. आई थिंक जिम्नोस्पर्म्स या किसी और में होगा. बेटा इट्स ऑल अ ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन. देखो, हमने अलग अलग फीचर्स को अलग अलग नाम दिया है, राइट? वी डोंट नो ना कैसा हुआ होगा, हमें क्या पता. अब जैसे ये हाइड्रॉइड की बात है, हमें क्या पता यही हाइड्रॉइड डेवलप होकर जाइलम बन गया होगा. अगर हमें ये हाइड्रॉइड का फॉसिल मिला, अगर हमें जाइलम का फॉसिल मिला, और अगर हमारा बीच का कोई फॉसिल मिलता है जो इसकी और इसकी तरह दोनों की तरह दिखता है, तो हम बोल देंगे ऐसा हुआ होगा, राइट? सो एंजियोस्पर्म्स, आई थिंक दे हैव कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स की मदद करने के लिए. आई थिंक जिम्नोस्पर्म या टेराइडोफाइट्स, आई एम नॉट श्योर विच, जिसके पास एल्ब्यूमिन सेल्स होंगे, आई एम नॉट श्योर वंस अगेन. तो वैसा जब भी है, इट इज जस्ट एन इवोल्यूशनरी स्टेप, ग्रेजुअलिज्म. धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही, कुछ भी आसमान से नहीं टपका, है ना. धीरे धीरे देयर वर मिस्टेक्स इन रिप्रोडक्शन, एरर्स, म्यूटेशंस, एंड दैट म्यूटेशंस क्रिएटेड न्यू फीचर्स, और नेचर सेलेक्टेड स्टफ दैट वाज एडवांटेजेस. ना एंजियोस्पर्म पक्का नहीं, एंजियोस्पर्म्स हैव कंपेनियन सेल्स, इट मस्ट बी जिम्नो और टेराइडो, राइट? उनका वैस्कुलर सिस्टम हम एंजियोस्पर्म सिस्टम से के जितना अच्छा नहीं है, दैट इज ट्रू. एंड व्हाई डू वी फाइंड सच थिंग्स? इट्स अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन बेटा, ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन है और कुछ नहीं. ठीक है गाइज, एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर आई गो फॉर माय क्वेश्चंस? क्या आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस में जाऊं? सर, was there a difference in their function and mechanism working? Samyak, again,
डाइवर्सिटी नॉट माई ग्रेटेस्ट फिट, आई विल हैव टू रीड बेटा. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे सचमुच नहीं पता, मतलब नॉट माई फॉर्टे. डाइवर्सिटी इज रियली नॉट माई फॉर्टे. सो अगेन आई विल हैव टू रीड. एज आई ऑलरेडी से, आपको पढ़ने के लिए के एक महीने पहले मुझे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ा था. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैवंट कम अक्रॉस राइट नाउ. आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट. ठीक है, आई लुक इनटू इट. जस्ट रिमाइंड मी ऑन टेलीग्राम. मुझे टेलीग्राम पे रिमाइंड कर देना. आई लुक इनटू इट. नॉट माय फॉर्टे. आई विल हैव टू रीड अ लॉट अबाउट दिस. ठीक है, दे मस्ट हैव बीन, इसीलिए उसको अलग बोला. बट क्या होगा आई कांट रियली से विदाउट एक्चुअली नोइंग इट. बस ऐसे बोलना सही नहीं होगा. ओके चलो. एनी अदर डाउट्स बेटा रिलेटेड टू होल ऑफ प्लांटी? गाइज एनिमेलिया इज गोइंग टू बी टफर. सो अगर प्लांटी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, एनिमेलिया में मेहनत करना आसान होगा. ठीक है चलो. द मोस्ट बेसिक प्लांट्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड विद. अगर इन चारों में से आपको मोस्ट बेसिक प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स चुनने को बोला जाए, ओ आई एम सो सॉरी, देयर इज अ मेंटी. सर मैं एक बात बोलूं तो मुझे प्लांटी में कुछ समझ नहीं आया. श्रवण आपने लेक्चर्स को देखा, मतलब पूरा पूरा देखा? पूरे लेक्चर्स, पूरे 1 घंटे या 90 मिनट जितने का भी लेक्चर्स है, क्या आप पूरे लेक्चर्स में रहे? एकदम ऑनेस्टली बताओ. ओके देखो, व्हाट आई से इज, अगर मेरे, देखो ये भी हो सकता है कि मेरे तरीके से समझ में ना आया. टोटली पॉसिबल. यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ. इट माइट बी कि शायद मेरा ही तरीका वैसा था कि आपको समझ में नहीं आया. ऐसा बिल्कुल हो सकता है बेटा. ऐसा हो सकता है कि मेरा तरीका शायद ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया. टोटली पॉसिबल. इन दैट केस अभी सौम्या मैम भी लेक्चर्स ले चुकी हैं ऑलरेडी. ठीक है, सौम्या मैम के भी लेक्चर्स हो चुके हैं. व्हाट यू शुड डू इज, एक बार उनके लेक्चर्स देखो. अगर उनके लेक्चर्स से समझ में आ गया, जॉब डन. राइट बेटा देखो, मॉर्निंग एंड इवनिंग लेक्चर्स दे आर पार्ट, है ना, वो एक दूसरे से अलग नहीं है. दे आर अ पार्ट. राइट. बट अगेन ऐसा हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका वैसा रहा हो. टोटली पॉसिबल. एक बार आप सौम्या मैम के लेक्चर्स अटेंड करो, और अगर उनसे समझ में आ गया, वेल एंड गुड. ठीक है, व्हाट मैटर्स इज आपको समझ में आना चाहिए. किसी से भी समझ में आए, मुझसे नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार सौम्या मैम के लेक्चर्स अटेंड करना ट्राई करो. यू नेवर नो राइट. मुझे फिजिक्स कभी समझ में नहीं आया इन माई स्कूल, बट जब मैंने राममूर्ति शंकर सर का वीडियो देखा, मुझे समझ में आने लगा, मुझे फिजिक्स अच्छा लगने लगा. राइट. सो ऐसा होता है. ओके guys, this is a Menti code. There aren't lot of questions in Menti today, but there are a few at least. Come on guys, quickly join the Menti quickly join कीजिए, and then we'll go for the rest. Yes guys, 5271-405. everyone फटाक से Menti join कर लो, and if you haven't shared this with your friends, try to share them with your friends as well. Okay, so I'm going to start now. Sorry. Okay, the most basic plants can be characterized with. सबसे basic plants को हम क्या कह के characterize कर सकते हैं? Guys, where is everyone? Menti में सिर्फ एक बच्चा है, and I'm very sure शायद ये सम्यक होगा. Where is others? What? Why? What happened? क्या हो गया? यार डरना इतना सही नहीं है कि हम भाग जाएं. I can see 6 watching. एक मैं माइनस कर लूं तो 5 है. तो okay, okay. Guys, where is everyone else? Guys, where is everyone else? Nobody interested in like Menti?
well, that's a good thing, not exactly good thing, but yeah, मतलब if you're not crazed about menti, that's sort of a win-win for me. But इसका ये मतलब है कि आप आंसर ही मत करो. Thalophyta refers to the plants without root, stem or leaf like organs. The main limitation must be. Thalophyta के पास root, stem और leaves नहीं है, उनका main limitation क्या हुआ होगा? उनका main limitation क्या हुआ होगा? It's okay बेटा. Guys देखो, हिमांशु मैंने पता है आपको क्यों डांटा था सुबह? Because I don't expect it from you. देखो, now the more I become familiar with you people, the more I will start hug jatana with you people. So जैसे Samyak, Shravan, Kritigan, you were also there. So now that I know you people, if I see you people doing something out of the, you know, clouds, तो I will not sit and watch that. देखो YouTube पे I understand मस्ती मजाक करना है करो यार, but don't become that जनता कि अरे यार सर तो माइल्स दूर बैठे हुए हैं, चलो कुछ भी बोल के निकलो. देखो this is not that मुझे गुस्सा आया. It's just like अगर you people also start to do the same thing, फिर तो बाकी भी सोचेंगे यार यही होता है यहाँ और यही करना भी चाहिए. Not nice बेटा. That's the reason I scolded you कि that was not the correct way. कि सर मतलब I don't remember exactly क्या था. ठीक है, तो ऐसा नहीं that I'm holding a grudge or something. It's for you बेटा कि आप ना अभी से अगर थोड़ा झुकना सीखेंगे, believe me झुकना is advantageous, right? झुकने वाले को ज्यादा मिलता है बेटा. Now what was the question? मैं भूल गया. Anybody could you please remind me the question? हाँ, main limitation क्या था? और ये लोगों ने गलत क्यों किया भाई? वाई ये गलत क्यों हो गया? मेन लिमिटेशन क्या हो सकता है बेटा? नो रूट, स्टेम और लीव्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेशन लिमिट ऑन साइज, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. बेटा प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज तो नो डाउट होगा, कम होगा बट होगा, राइट? क्योंकि लीफ तो है, लीफ नहीं है माना, फोटोसिंथेसिस तो हो ही सकता है ना बेटा, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज डेफिनेटली होगा. ट्रांसपोर्टेशन लिमिट ऑन साइज, यस. क्यों? डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा. डिफ्यूजन हो रहा है बट इट्स गोइंग टू बी स्लो. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस वाज ट्रांसपोर्टेशन लिमिट ऑन साइज, नॉट एनीथिंग एल्स. सो करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए था, राइट? एंड रिगार्डिंग एनटीएससी डेली लाइफ कोर्सेज, आज ही की लेक्चर में आई विल टेल यू. वैसे तो यू ऑलरेडी नो द टाइमिंग्स. सौम्या मैम का टीटीएस है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आई थिंक 5 बजे आई थिंक, और मेरा होगा ट्यूसडे से सैटरडे रात को 8 बजे. मैं अभी दिखा दूंगा, आई विल शो यू पीपल द प्लान जो अभी मैंने बनाया है. इफ यू हैव एनी सजेशंस इन द टाइमिंग, दैट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ, राइट? ओके, बट याद रखना मेरे पास बस 2 ही स्लॉट्स हैं, सुबह और रात. मतलब उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता. दैट इज द स्लॉट दैट इज अवेलेबल टू मी. ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी. चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, गो अहेड. Gymnosperms and angiosperms are collectively referred to as spermatophyta. The reason is, come on guys. Okay, so why are they called spermatophyta? Because both have seeds. लगभग 1800 के अराउंड, आई थिंक इन 1800s, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखे जाते थे, राइट? सीड वाज द मेन डील दैट वाज यूनाइटिंग देम. सो 1800s के क्लासिफिकेशन के समय देयर वाज अ सुपर ग्रुप कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, एंड स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया जाता था. बट जब धीरे धीरे विटेकर सिस्टम के आते आते वी वेरी वेल understood that there were very different types of plants, right? So spermatophyta is now just an informal category. जैसे कि मैंने आपको बताया था algae एक अब informal category है, bryophyte modern हिसाब से informal category है. Why? None of them have a phylogenetic
यूनानिमिटी, उनमें फाइलोजेनेटिक यूनानिमिटी नहीं है, राइट। बट विटेकर सिस्टम के हिसाब से वी स्टडी देम एज इंडिविजुअल डिविजन्स और फाइला, राइट। तो उसी हिसाब से विटेकर सिस्टम के लिए 1800 वाला सिस्टम आउटडेटेड था। जैसे फाइलोजेनी के हिसाब से विटेकर सिस्टम आउटडेटेड है, विटेकर के हिसाब से 1800 वाला सिस्टम आउटडेटेड था, एंड वी स्टॉप्ड यूजिंग द टर्म स्पर्मेटोफाइटा, राइट। दैट इज वन ऑफ द डील, बट रिमेंबर समय के साथ ये चेंज होता है। ऐसे दो वर्ड्स आपको और सुनने को मिलेंगे, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेराइडोफाइटा को कलेक्टिवली कहा जाता है क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनकंस्पिकुअस हैं। वेयर एज द जिम्नोस्पर्म्स एंड आपका एंजियोस्पर्म्स, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनको फेनेरोगैम कहा जाता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अब एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगा, ट्रेकियोफाइट। ट्रेकियोफाइट मतलब वैस्कुलर एलिमेंट्स। सो पूरा प्लांटी में से थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हटा दो, यू हैव द ट्रेकियोफाइट्स, वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। Oh, sorry, go ahead. Land invasion of plants allows them all of the following advantages except one. लैंड इन्वेजन से हमें ये सारा का सारा फायदा मिला सिवाय एक के। सिर्फ एक चीज है जो हमारे लिए प्लांट्स के लिए, नॉट हमारे लिए, प्लांट्स के लिए फायदेमंद नहीं थी। गाइस एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, टेक दिस एज एन एडवांटेज। यूट्यूब का एक फायदा है, यूट्यूब पर लिमिट्स नहीं है, स्पेशली फॉर योर टीचर्स। YouTube hasn't got any limits. So many a times we as teachers try to make sure that you have the knowledge even outside the curriculum, जो शायद आपके लिए बहुत एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन हो सकता है माने कि you can connect with it in the real life. That is why your teachers, all of us, we try to do something like that. स्पेशली डाइवर्सिटी में एवरी नाउ एंड देन ऐसा होगा कि हम बोलेंगे एनसीईआरटी ये है, दुनिया ये चलती है, ऐसा बहुत बार होगा। एंड एनिमल्स में तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद इट। मतलब मैं आपकी दुविधा भी समझता हूं, समटाइम्स इट्स टू मच। आई नो मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको 18 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं। आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, बट बेटा इफ यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी तो अब करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा ट्राई योर बेस्ट कि जो लिमिट्स आपके टीचर्स क्रॉस कर रहे हैं, आउटराइट उसको सिलेबस के चश्मे से मत देखना कि ये सिलेबस नहीं है। सो आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज जिम्नोस्पर्म्स एंड, अच्छा नहीं ये तो हो गया था, हाँ लैंड इन्वेजन के बारे में क्वेश्चन था कि लैंड इन्वेजन अलाउज देम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट वन, लेस स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज। यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। व्हेन दे आर इन वाटर दे आर सपोर्टेड बाय वाटर करेंट्स, राइट, दे आर सपोर्टेड बाय वाटर करेंट्स, दे आर सपोर्टेड बाय बायोवेंसी, दे हैव एरेनकाइमा, राइट। बट व्हेन दे आर ऑन लैंड उनको हार्ड कोर टिश्यूज चाहिए, डेड टिश्यूज चाहिए, कैम्बियम चाहिए होगा, सो दैट दे कैन सपोर्ट देयर हाइट। क्यों? अगर हाइट नहीं जाएंगे तो उनका फोटोसिंथेसिस भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और रिप्रोडक्टिव क्राउडिंग भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दे नीडेड मोर स्ट्रॉन्गर टिश्यूज नाउ। Okay. Question number 5 of 10. Which of the following offers most care for the embryo? Embryo के लिए सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? Which of the following के पास सबसे एडवांस फीचर्स हैं फॉर द केयर ऑफ द एम्ब्रियो? ब्रायो, टेराइडो, जिम्नो एंड एंजियो।
Okay. So angiosperms are the ones जिसके पास सबसे ज्यादा केयर है, because not only they have seeds, obviously they do have seeds, but seeds के पास उसके बाद उनके पास fruits भी है. Now fruits are not exactly caring, but fruits in the nascent stage are flowers. ये flowers भी उनके लिए sort of protection का ही काम करता है. Right? Go ahead. अगला question आपके लिए. Pteridophytes witnessed a growth in height compared to bryophytes. The chief reason. देखो बेटा, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड ही है, उसी को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है. कॉन्सेप्ट्स दे आर लिमिटेड, उसी को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है. वेरी गुड. वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज होने की वजह से ही दे कुड अटेन द हाइट दैट गेव देम दैट पर्टिकुलर एडवांटेज. Oh, we have 3 people now. Why are people not much into the sessions? I don't, मतलब I know the chapter ही वैसा है, but फिर भी. The most important adaptive advantage associated with the filamentous nature of fungal mycelia. फंगल माइसीलिया के साथ जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा एडवांटेजियस फीचर क्या है? फंगल माइसीलिया के साथ जुड़ा हुआ, यस, इट इंक्रीजेस देयर एब्जॉर्प्टिव एरिया. वो उनका एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज कर देता है. क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 10. Bryophyta is cryptogam. They reproduce through conspicuous spores. उनका reproduction में conspicuous spores होते हैं. That is why you call them cryptogams. How true or not is this? Very good. So guys, bryophytes, that is very true. They are a cryptogamy, but not because they have conspicuous, they have inconspicuous, yani less visibly identifiable features. That is why there's very less. ठीक है? Okay. The fight? No, actually there's a difference. Okay. चलो, I think last question है ये. नहीं, second last question. Pteridophytes and gymnosperms are tracheophytes. Pteridophytes और gymnosperms tracheophytes होते हैं. So what's your conspicuous? Something is conspicuous, easily identifiable. Like this microphone is conspicuous. किसी को भी दिख जाएगा आराम से. It's conspicuous. Inconspicuous क्या होता? इसके साथ अगर मैंने लेपल माइक जोड़ के यहाँ पे हल्का सा निकला होता तो वो inconspicuous होता. Right? Pteridophyte and gymnosperms are tracheophytes. That is very true. दोनों के पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं, बट व्हाट डज दैट, क्या उनके पास स्टोमाटा होने का वो मतलब नहीं. स्टोमाटा सभी ब्रायोफाइट्स के साथ से ही आपके पास स्टोमाटा है. राइट? सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन. देयर वर मोर क्वेश्चंस, बस वो मेंटी में नहीं है, तो विल डू इट ऑन नेक्स्ट डे. एल्गी में विटनेस स्पेशलाइजेशन. एल्गी किस स्टेज में स्पेशलाइजेशन रिसीव कर सकता है? Haploid or diploid? Haploid only, diploid only, haploid or diploid, but they must witness specialization, or haploid, diploid or neither. हो सकता है किसी में भी ना हो. Guys, correct answer was 4. ऐसा नहीं है कि algae में specialization होना जरूरी ही है. Spirogyra, right? Volvox, they are thalophytes. They don't have any specialization yet. They are considered either colonial or multicellular. राइट? फिर भी उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है. राइट? सो जरूरी नहीं है कि देयर वुड बी अ स्पेशलाइजेशन, बट यस, अगर हुआ तो हैप्लॉइड फॉर्म में भी हो सकता है, डिप्लॉइड फॉर्म में भी हो सकता है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मोनोबायोटिक और डाइबायोटिक. राइट? मोनोबायोटिक मतलब सिर्फ एक में होगा, डाइबायोटिक मतलब दोनों में हो सकता है. राइट? और नीदर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. चलो, लेट अस फाइंड आउट वेयर आर वी. ओके. So I think Samyak is
Samyak is a clear winner here. Well done बेटा, this is really good. Guys देखो, अगर आप करते रहोगे ना तो सब कुछ होगा यार, मतलब पॉसिबिलिटी है, एंड बिलीव मी अच्छा भी लगता है कि आप कर पा रहे हो, ठीक है. गाइस चेंज इन प्लान्स. अब नया प्लान फॉर अगस्त क्या है? हाउ विल वी कंडक्ट क्लासेस इन अगस्त, राइट? अ लॉट ऑफ यू वांट क्लासेस ऑन सैटरडेज एंड संडेज. संडे को मुझे छुट्टी चाहिए एटलीस्ट. तो अब क्या है, क्लासेस हमारी ट्यूसडे टू सैटरडे रन करेंगी. YouTube NTSE डेली लाइव के नाम से रन करेगा, नीट 2023 के नाम से रन नहीं करेगा. वी आर रनिंग इट फॉर एज NTSE लाइव. नीट 2023 के नाम से ओकेजनली रन करेगा, बस नाम बदल रहा है, काम अभी भी वही है. हम NTSE और NTSE प्लस लेवल की तैयारी करेंगे. नाउ क्लासेस कब कब होगा? रात को 8 बजे, ऑलवेज ट्यूसडे टू सैटरडे. ऑलवेज ट्यूसडे टू सैटरडे रात को 8 बजे. सुबह 8:30 बजे सिर्फ वेंसडे और सैटरडे को क्लासेस होगी. सुबह 8:30 बजे सिर्फ वेंसडे और सैटरडे को क्लासेस होगी, ठीक है. IJSO विजेता ट्यूसडे टू फ्राइडे 3 बजे, प्लस क्लासेस जो मास्टर्स बैच अभी चल रहा है वो आपको ऑलरेडी पता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होता है. कभी काल बोनस प्लस क्लासेस आपका वेंसडे को लगेगा, ठीक है. So this is the pattern of the classes that you will have for entire of August. आपके August के लिए ये pattern रहेगा. Is there anyone who has a problem with any of these timings? YouTube, IJSO विजेता और plus. देखो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ऐप तो मेरे हाथ में, प्लस क्लासेस मेरे हाथ में नहीं है. It's fixed by the backend team. YouTube के लिए मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, 8 और 8:30. सुबह सबकी स्कूल हो चुकी है तो इसलिए अब 8 ही बच रहा है. बट 8 में आई डोंट फाइंड मेनी स्टूडेंट्स, आई डोंट नो. बट अगेन ऐप की क्लासेस में कोई इशू किसी को? इफ एवरीथिंग इज कूल देन विल गो फॉर दिस प्लान. अदरवाइज इफ यू वांट एनी सजेशंस, एवरीथिंग इज वेलकम, ठीक है. सो इफ यू वांट कुछ इसमें चेंजेस तो आप बता देना. अदरवाइज अगस्त की क्लासेस दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम August 1 विल रन जस्ट लाइक दिस, ठीक है. कूल है, ओके, ठीक है. सो गाइस आज के लिए इतना ही. दिस इज वेयर वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे, ठीक है. आज हम यहीं पे रुक रहे हैं. विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट कल. हाँ कल सुबह क्या है, कल माइंड मैप करेंगे रेस्पिरेशन का, और रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे NTSE और NSEGS के लाइफ प्रोसेसेस और ब्रेन का मिलाकर, ठीक है. तो कल वंस अगेन रिविजन सॉर्ट ऑफ सेशंस होते रहेंगे, ठीक है. चलो गाइस, thank you so much. Bye bye. See you people tomorrow. Thank you so much. Have a good night. Thank you. Bye bye.